Hey guys, welcome back to the channel. So, in today's video, we will see a basic data frame, how to create a basic data frame in RStudio. Okay, and we will also see कैसे आप multiple columns को एक data frame से access कर सकते हो, how to print that particular data frame, how a data frame works in the RStudio. Okay, and how to subset the data frame, and at last we will also see if we have a data frame, then how to create a plot or a graph from that particular data frame. Okay, so let's get started. So first of all, creating data frame is simple in RStudio. बहुत ही simple है. Suppose for an instance I've taken an example, this I have coded. So here I have just taken student data जो है वो मेरा एक variable है. Okay, and inside that I am defining a data frame. Okay, so student data, inside that data dot frame. So I have taken student and their test scores. Okay, so student ID, name and age. So you can see student ID, name, age and their test scores I have taken. Okay, for my data frame. Now I have to print this particular data frame. So कैसे print करेंगे? Simply write print and then the name of the variable in which your data frame is stored. So the name of variable is student underscore data. Okay, so ये हो गया मेरा data frame. This is my data frame. Okay, now the next part is how to access the data in the data frame. ठीक है, suppose आपको कुछ particular जैसे ये वाली section जो name section या फिर name column है, that I have to access. So for that, what you have to write? You have to write names and then the variable name in which your data frame is stored, that is students underscore data and dollar name. So dollar name is used for extracting the column. Okay, so I have to extract the column name. So I will use dollar name. Okay, and then I'll just print the names because names is the variable in which my column is extracted. So once I write print names, so this column will get extracted. Okay, so Alice, Bob, Charlie, David and Eve, this column got extracted. Okay, so before moving on to the next part, which is कैसे हम multiple columns एक data frame में से access कर सकते हैं. So चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो के एंड तक बने रहना. प्लॉटिंग भी सिखाएंगे कि कैसे डेटा फ्रेम को प्लॉट कर सकते हैं. ठीक है, सो अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर करना, कमेंट करना और शेयर करना एज मच एज यू कैन, बिकॉज इट इज फॉर द बिगिनर्स हु आर ट्राइंग टू लर्न कोडिंग एंड हु एक्चुअली वांट टू लर्न द ऐप प्रोग्रामिंग व्हिच इज वेरी मच इन डिमांड. ओके, सो चलो नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं. कैसे मल्टीपल कॉलम को हम एक्सेस कर सकते हैं. यहाँ तो केवल सिंगल कॉलम को एक्सेस किए कि I wanted to access the name column, so I can extract the name column by using the dollar name sign. ठीक है, so if I want to extract multiple के लिए क्या करेंगे? Just a comma separated, I just have to write the name of the column. Okay, so यहाँ पे आ गया name and comma, टेस्ट स्कोर भी चाहिए तो हम टेस्ट स्कोर डाल दिए एंड बोथ शुड बी इन इन्वर्टेड कॉमर्स एंड देन आई प्रिंट स्कोर्स बिकॉज इनसाइड द स्कोर्स ये दोनों कॉलम मैंने एक्सट्रैक्ट किया है. ठीक है, सो वंस यू राइट प्रिंट स्कोर्स, नेम एंड टेस्ट स्कोर दोनों कॉलम आ जाएगा. ओके, सो 3 पार्ट्स हैव बीन कवर्ड. सबसे पहला हो गया कैसे हम डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे, उसको प्रिंट कैसे करेंगे, डिस्प्ले कैसे करेंगे एक सिंगल कॉलम को एंड देन मल्टीपल कॉलम को कैसे एक्सेस करेंगे. ओके, नेक्स्ट पार्ट इज हाउ टू सबसेट. ओके, सबसेट मतलब मेरे को पूरा डेटा फ्रेम में से, सपोज ये मेरा डेटा फ्रेम है, पूरे डेटा फ्रेम में से कुछ ही डेटा चाहिए. ओके, दैट्स कॉल्ड एज अ सबसेटिंग. ठीक है, सपोज मान लो मेरे को कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 5 ही चाहिए कि. ठीक है, तो उसको बोलते हैं सबसेट. तो उसके लिए क्या करेंगे? वी हैव टू राइट सम लॉजिक कोड ओवर देयर. लॉजिक कोड मतलब अगर हम टेस्ट करेंगे वहां पे कंडीशन की, सपोज एक वेरिएबल ले रहे हैं हाई स्कोर एंड इनसाइड दैट आई राइट द वेरिएबल इन विच माय डेटा फ्रेम इज देयर, सो स्टूडेंट अंडरस्कोर डेटा, और उसके बाद हम लिखेंगे स्टूडेंट अंडरस्कोर डेटा डॉलर टेस्ट स्कोर इज ग्रेटर देन 90. सो ये वाले डेटा फ्रेम में से जिस किसी का भी टेस्ट स्कोर ग्रेटर देन 90 है, केवल वही एक्सट्रैक्ट हो जाएगा. सो दैट मीन्स ये वाला रो एंड ये वाला रो दोनों एक्सट्रैक्ट हो जाएगा एक साथ. ओके, सो दैट्स हाउ सबसेटिंग वर्क. सो आपको ध्यान किस चीज पे देना? यू हैव टू मेक श्योर योर code which you are writing, the syntax is correct. Okay, so first you have to write your variable name in which your data frame is stored. Second, you have to use the dollar sign
फॉर एक्सट्रैक्टिंग एनी कॉलम, सो यहाँ पे हम टेस्ट स्कोर को चेक करना चाहते हैं, दैट इज वाई आई हैव रिटन डॉलर टेस्ट स्कोर एंड देन माई कंडीशन इज ग्रेटर देन 90. ओके, नाउ नेक्स्ट, अगर हम कोई एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करना चाहते हैं, अगर ये एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम में कोई एक्स्ट्रा कॉलम अगर हम ऐड करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए आई जस्ट राइट स्टूडेंट अंडरस्कोर डेटा डॉलर ग्रेड. ओके, सो डॉलर ग्रेड मतलब यहाँ पे हम एक नया कॉलम दे रहे हैं स्टूडेंट अंडरस्कोर डेटा को. ओके, एंड उस कॉलम का नाम है ग्रेड. फाइन, एंड देन आफ्टर दैट आई विल चेक कि इफ स्टूडेंट डेटा डॉलर टेस्ट स्कोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90, ठीक है, देन A एंड B ऐसा ग्रेड आएगा उसको. ठीक है, सो वंस आई प्रिंट द स्टूडेंट डेटा, जिस किसी का भी टेस्ट स्कोर ग्रेटर देन 90 है उसको A ग्रेड आएगा, अदरवाइज B ग्रेड आएगा. वाई? बिकॉज हम यहाँ पे इफ एंड एल्स कंडीशन का यूज किए हैं. दैट इज हाउ ये कॉलम क्रिएट हो जाएगा. लास्ट वाला कॉलम है जो कि ग्रेड कॉलम. ओके, तो चेक करेगा कंडीशन, अगर किसी का 90 से ऊपर है या फिर इक्वल है टेस्ट स्कोर, देन उसको A ग्रेड देगा. सो इफ यू कैन सी, अगर हम प्रिंट करते हैं स्टूडेंट डेटा को अगेन, सो इफ यू कैन सी ये A ग्रेड है एंड दिस इज ऑल्सो एन A ग्रेड, बाकी सब B ग्रेड है. ओके, एंड फाइनली मेरे को अगर मेरा समरी चाहिए तो समरी ऑफ होल्ड माय डेटा फ्रेम, सो यू कैन डायरेक्टली राइट समरी स्टूडेंट डेटा, ये उसका समरी आपको प्रोवाइड कर देगा. ओके, नाउ moving on to the plotting part, which is the most interesting and most useful part of this particular video. ठीक है, तो सबसे पहले हम तो ggplot को लाइब्रेरी पैकेज को इंस्टॉल कर लेना है. अगर नहीं इंस्टॉल्ड है तो यू कैन इंस्टॉल इट विद द हेल्प ऑफ install.packages कमांड. ठीक है, या फिर आप पैकेजेस में जाकर के भी इंस्टॉल कर सकते हो. यू कैन गो टू द पैकेज, यू कैन सर्च बार में आप लिख सकते हो ggplot. ठीक है, ये आ रहा है जैसे स्टार्टिंग में, यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन द टिक मार्क एंड देन इंस्टॉल, दैट्स इट. ठीक है, सो वंस यू हैव इंस्टॉल्ड यू हैव टू क्रिएट द प्लॉट. तो प्लॉट कैसे क्रिएट करेंगे हम लोग, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स एक्सिस को ले लिए एज, वाई एक्सिस को ले लिए टेस्ट स्कोर्स. ओके, एंड वी आर क्रिएटिंग आर प्लॉटिंग एक्स एक्सिस वर्सेस वाई एक्सिस. ठीक है, ये एक जीजी प्लॉट हम लोग बना रहे हैं जो कि एक स्कैटर प्लॉट. ओके, सो फॉर क्रिएटिंग अ स्कैटर प्लॉट we should have an x axis, y axis, and उन दोनों को मैंने नाम दे दिया, and AES is used for scatter plot. Okay, after that scatter plot को save कर लिया with gg save, that is you are saving this scatter plot as a PNG image for your future use, and then you are also trying to create the data frame with missing values. यहाँ पे मैंने create किया है, अगर कोई values missing है तो वो भी create कर लिया. ठीक है, नाउ इसको अगर हम देखेंगे इसका प्लॉट कैसे क्रिएट होता है, तो प्लॉट में जाएंगे, सो यू कैन सी ओवर हियर, इसको हम जैसे एक्सपैंड कर देते हैं थोड़ा, सो यू कैन सी ये टेस्ट स्कोर है, ये एज है. ठीक है, टेस्ट स्कोर और एज के वर्सेस में स्कैटर प्लॉट बनाना था, सो यू कैन सी दिस इज आवर स्कैटर प्लॉट. ठीक है, तो ये पूरा वीडियो था कि कैसे हम डेटा फ्रेम को क्रिएट कर सकते हैं और उसको कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कॉलम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल कॉलम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं डेटा फ्रेम को, एंड एट द एंड कैसे हम डेटा फ्रेम को प्लॉट कर सकते हैं. ओके, सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो. तो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करो एंड कमेंट करो कि नेक्स्ट वीडियो क्या चीज पे देखना चाहते हो आप लोग. टिल देन don't forget to subscribe to our channel and we'll meet you guys on our next video. Thank you so much for watching.